Assalamu alaikum. Good evening, one and all. I, Dr. Naima Afeen, welcome you all for the second episode of Gulabi Guftugu, which is an initiative of Human Solidarity Foundation. Before introducing you all with our guest, I would like to tell little bit about the origin of Gulabi Guftugu. This name was given by Dr. Aksa Sheikh, who is founder of Human Solidarity Foundation. Gulabi, or the pink color, has always been associated with women or females. And I don't know why, but women are blamed or they are infamous for chit chatting and talking and gossiping. But this talk is going to be different because it is coming from the empowered women. And they can act as a spark for someone, they can act as a motivating force for someone. That's why the name is Gulabi Guftugu. Thank you, Dr. Aksa, for giving such a beautiful name to this. And a lot of people asked me about it. So today I thought to clear from where this name arrived. तू शाही है परवाज है काम तेरा तू शाही है परवाज है काम तेरा तेरे सामने आसमां और भी है. Today I'm honored to share this platform with so many beautiful and empowered girls. Not only they are beautiful, they are sitting against very beautiful background as well. I can see Aisha, Nida. So I will introduce each one of one by one. We have with us Mariam, who is writer, researcher, and a communication consultant. She is currently based in Singapore. She produces and runs a podcast, Main Bhi Muslim, to bring out the diversity within the Indian Muslim diaspora. Welcome, Mariam. Next, we have Nida Khan, who is an enthusiastic software developer with a passion for learning and programming. She is also a host and founder of Hey Womeneer, a YouTube channel that celebrates powerful women by their stories. Welcome, Nida, in this Gulabi Guptagoo. Now we have the one who is an entrepreneur, digital marketer, social worker, as well as an Urdu poet. Yes, she is versatile. Please welcome Aisha Ayub, who is the founder of Her, The Courtship, a digital marketing company, and Mukhatib Foundation, which works for the upliftment of Urdu language. Thank you. Thank आप you so much. सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ इस गुलाबी गुफ्तगू में और हम शुरुआत करेंगे इसकी. So my first question would be from Mariam. Mariam, you are so much into literature and research. What made you think to start the podcast Main Bhi Muslim? We want to know the idea behind this. Firstly, thank you, Naima, for having me on this show, and thank you, Dr. Aksa, for running this initiative. And I'm firstly just very excited to be, as I said earlier in my post, with some lively women out there. So great to meet all of you in virtually in person. And I do hope that at some point हम लोग actual में मिल सकें और एक साथ बैठकर अपनी गुफ्तगू कर सकें. So सबसे पहले तो I think Naima, the question that you asked me as to why did I begin or initiate the podcast. Main Bhi Muslim came from a very personal space because मेरा जो आइडेंटिटी एज एन इंडियन मुस्लिम है मैं हमेशा से उसको जीती आई हूँ लाइक आई एम बोर्न इन अ मुस्लिम इंडियन मुस्लिम फैमिली एंड 2019 में व्हेन द सीएए प्रोटेस्ट स्टार्टेड इन शाहीन बाग मैं यहाँ थी सिंगापुर में लेकिन जब मैं अपनी छुट्टियों के लिए वापस इंडिया आई रियलाइज दैट कितना कुछ मुझे समझने और सीखने को मिला फ्रॉम व्हाट वाज हैपनिंग इन शाहीन बाग जो मैंने एज एन इंडियन मुस्लिम वुमन कभी सोचा नहीं था बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रगल वी टॉक अबाउट इन वेरी बाइनरी इंडेक्स्ड नोशंस हम सोचते हैं कि इट्स द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम और इंडिपेंडेंस इट्स द स्ट्रगल फॉर वुमेन्स एमेंसिपेशन इट्स द स्ट्रगल फॉर टॉकिंग अबाउट लाइक हाउ टू गेट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इनटू मेन स्ट्रीम लेकिन शाहीन बाग was this one place जहाँ पे it wasn't just one aspect of freedom or a protest. It was Indian, it was Muslim, it was women. And I felt like मैं भी Muslim is that like मेरे लिए अगर मैं सोचूं तो मेरी identity
is as an Indian, it's as a Muslim, it's as a woman. It's now as I grow further in life, it can become different many aspects. So maybe Muslim is I am all of that and a Muslim too. And so the podcast actually started to talk and have this conversation first with myself and bring it out in the public platform. कि मेरी identity बहुत चीजों के साथ जुड़ी हुई है and मेरी हिंदुस्तानी मुसलमानियत is that one core identity that I want to talk about, especially now जब that identity is being challenged. So maybe Muslim as a podcast essentially started from there. Yeah, that was really a revolution for a lot of people, which you talked about. Next, Nida, you interview women to celebrate their achievement and to empower other women by their stories. First of all, how do you feel getting interviewed yourself, Nida? It's amazing, and I feel like it's a give and take. I take, and now you're taking my interview. So it's a lovely experience getting interviewed. Yeah, Nida, we also want to know about the idea behind the YouTube channel which you started, Hey Womenure. Okay, so since I'm a software developer, I am in a full-time job, 9 to 6 job, and we have some phases in between. Everyone have where we feel a little bit demotivated, and I was one of them. I feel demotivated sometimes in between. And what I used to do at those times is reading the stories of some inspiring, successful women, and which always give me a motivation, a boost, and I always feel like working so much after that. So my motive was to create a YouTube channel so that I can do it for other women who are feeling demotivated and they can get inspired from the inspiring stories of wonderful women. And the other thing to start this YouTube channel was that I want to celebrate the victory. I want to celebrate the women who are doing great in their fields, because when we do something and we get appreciated for it, we feel more empowered, and we love that. So that's what I wanted to do, calling up the women and ask about their stories, about the challenges they have faced, so that they can help other women who are doing same thing and they are facing the similar challenges, so they can tackle those challenges. So that was my motive behind Hey Womenure. Also, I conduct few sessions, just like I conducted a session in the past. It was like how to earn money online. So, which is a very important topic for women who are working, who are at home, who are housewives and who want to earn money. So it's a session that how can they earn money online, and we have similar sessions so they can help women in variety of different ways, and in fact in the field they are working. So that was the motive. So now people will read your story and listen to your story from now onwards, Nida. अब आयशा से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी कि हम सबको 24 घंटे मिलते हैं एक दिन में. We all get 24 hours in a day. How do you get 30 hours? You have founded her, the courtship, Mukhatib Foundation. So please tell us about your diversified work. बहुत शुक्रिया निदा. तो मैं उर्दू में गुफ्तगू करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि मैं उर्दू को प्रमोट भी करती हूँ, एंड वी कैन कन्वर्स इन इंग्लिश वेयर रिक्वायर्ड. सो मुखातिब फाउंडेशन को हमने 4 साल पहले लखनऊ में उसकी नींव रखी थी. इट वाज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु वर इंटरेस्टेड इन उर्दू पोइट्री, जो स्पेशली जो यूथ है यहाँ का, जो क्योंकि लखनऊ का नाम जो है वो उर्दू से और तहजीब से बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया जाता है वर्ल्ड वाइड. लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगी थोड़ा सा ओवररेटेड हो गया है कुछ टाइम से, बिकॉज एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर सिर्फ आपको पुराने लखनऊ में ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत उर्दूदा होंगे. अदरवाइज न्यू लखनऊ में या जो लोग यहाँ आए हैं और स्पेशली नॉन मुस्लिम यूथ ऐसा काफी ज्यादा था जो उर्दू पसंद करते थे, शायरी पसंद करते थे, लेकिन सीखना चाहते थे. और तो उनको हमने बस एक कनेक्शन का एक काम किया कि जो भी उस्ताद हैं या जो शायर हैं वो उनसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया. धीरे धीरे उसमें हमने छोटे मोटे इवेंट्स करे थे, कुछ बड़े इवेंट्स करे,
ऐसे करते करते 4-5 सालों से हम लोग अभी भी एक वर्कशॉप चल रहा है जो उर्दू गजल में बहर सिखाने का काम हम लोगों का अभी भी चल रहा है, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो वो मुखातिब की बात हो गई। और हर का मैं कहूंगी कि उसका फुल फॉर्म हडल एम्पावर राइज है। इसकी एक्चुअली जो मैं नेटवर्किंग और फीमेल ग्रुप मेरा 5-6 साल से चल रहा था लखनऊ में, लेकिन मैंने हर को एक नया नाम देके पिछले साल अगस्त में ही इसको रीलॉन्च किया। एंड मेरा मकसद ये था कि सिर्फ लखनऊ या इंडिया नहीं बल्कि और भी जहाँ की भी फीमेल्स हैं और वो कनेक्ट हो सके आपस में, और एक नॉट जस्ट एक नाम के लिए कोई एक कम्युनिटी या ग्रुप बना लें, लेकिन हमारा बहुत ही क्लोज बॉन्डिंग और कम्युनिकेशन है उस ग्रुप से। काफी लेडीज ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है और एक्चुअल काम होता है उसमें। और मतलब उसका जो नाम है वो बहुत ही मीनिंगफुल है, हडल करना, राइज, एम्पावर करना एक दूसरे को और राइज करना। तो उसमें हम काफी चीजें करते हैं, अलग अलग तरह की, इस तरह के टॉक शोज भी होते हैं और एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग वो होता है। एक कम्युनिटी है हमारी जिसमें अलग अलग फील्ड्स की इन्फ्लुएंशियल वुमेन है जो नेटवर्क कर सकती हैं उनसे जिनको उनकी जरूरत है, इस तरह से। और हमने उसमें ये हमारा मिशन उसमें ये रहा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी वुमेन, दैट शुड बी द की। बिकॉज अगर आप एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके बिना तो वो हो नहीं सकता ना। एवरी वुमेन शुड हैव द स्किल टू हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। बाकी उनकी अपनी चॉइस है वो कि वो करना चाहती है या नहीं, या कैसे करना चाहती है। अब जहाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात आती है तो 1.5 साल से हम कोविड में जो है जी रहे हैं, इस एरा में, इस पीरियड में। अभी भी जैसे हम लोग डिजिटली ही कनेक्टेड हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग को मैंने हर से जोड़ा इसलिए क्योंकि वो मेरी एक एजेंसी है जो अलग अलग सर्विसेज देती है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो हमने स्मॉल बिजनेस ओनर्स को वो सर्विसेज देने का एक वहां पे एक वर्टिकल बनाया, जिसमें जिनका बजट बहुत ज्यादा नहीं है बट दे डू नीड द सर्विसेज, उनको भी ये सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो आपने पूछा, कई लोग ऐसे ये सवाल पूछते हैं और डॉक्टर अक्सा से भी ये सवाल जो है वो कई लोग पूछते भी होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जो एक्टिव रहती हैं औरतें और बहुत सारी चीजें करती हैं। मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट इज द की, फैमिली सपोर्ट इज द की, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव टू डू 2-3 थिंग्स एट अ टाइम। सो दैट इज हाउ आई मैनेज ऑल दिस। थैंक यू निदा। टाइम मैनेजमेंट का टिप्स भी हम आपसे और डिटेल में लेंगे अगले एक सेशन में। As we all know that life is not a bed of roses, especially when you start doing something which is different or something which is going to change the belief of others. So I also believe that without ups and downs there is no life. आप लोगों ने भी देखा होगा कि ECG जो होता है उसमें कुछ ups और downs होते रहते हैं, तभी लगता है कि हाँ इंसान जिंदा है, और जहाँ वो एक स्ट्रेट लाइन आई उसको डेड बोलते हैं। तो लाइफ में परेशानियां, खुशी और गम, ये सब इससे जुड़ा हुआ है हमेशा। तो मुझे भी पता है कि कोई काम इतना आसान नहीं है। जो कुछ आप लोग कर रहे हैं, इफ इट इज डिफरेंट देन आपको बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। तो हियर आई वुड लाइक टू नो दैट व्हाट आर द हार्डशिप व्हिच यू पीपल फेस्ड एंड व्हाट वर द चैलेंजेस। क्या क्या परेशानियां आप लोगों ने झेली और आपने उसका किस तरह से सामना किया। And you know, this question is important because you will be heard by or you will be seen by lot of young Muslim women who are looking upon you as a figure of inspiration. So we will begin with Mariam first. Mariam, आपको किस किस परेशानी का सामना करना पड़ा, जो challenges आपने face किए वो आप हमको बताएं। टाइम को एक्चुअली नजरिए में रखते हुए आई विल कीप इट शॉर्ट इन अ सेंस टू ओनली रिफ्लेक्ट ऑन के व्हाट चैलेंजेस आई फेस्ड, या किस तरीके की चुनौती मैंने फेस करी जब मैं भी मुस्लिम एज अ पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाह रही थी। तो वेरी सिंपली स्पीकिंग, द रीजन वाई मैंने मैं भी मुस्लिम एज अ पॉडकास्ट स्टार्ट किया वॉज बिकॉज आई कुडंट बी फिजिकली प्रेजेंट एट शाहीन बाग। मैं शाहीन बाग में हो नहीं सकती थी। तो मेरे लिए सबसे एक मेरा नजरिया था वो ये उस वक्त ये चला कि if I can't do something there in person, that's a challenge. So I just thought that, okay, ab is chunauti ko how do I convert into an opportunity? And so that became my way of thinking. I start implementing the same principle of conversation, of bringing my word out through a podcast. मैंने पहले कभी podcast किया नहीं था. So
I am a journalism graduate, so I am trained in writing and communication. लेकिन I am not trained in podcasting or even radio. तो मेरे लिए सबसे पहला जो एक अहम जरिया बना as a challenge and then eventually an opportunity was understand podcasting किस तरीके से की जाती है. How do I ensure कि I can bring the story out जो कोई भी सुने. Again, मैं भी Muslim is not meant for only Muslim listeners. मैं भी Muslim is meant for everyone who understands कि मुसलमानियत का मतलब क्या है, you know, और हिंदुस्तानी मुसलमानियत का मतलब क्या है. तो to understand that fact, मुझे सबसे पहले like I went back कि मैं स्क्रिप्टिंग कैसे करूँ, you know, स्क्रिप्टिंग के बाद मैं किस तरीके का अपना एक प्रोसेस इंप्लीमेंट करूँ जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग सही से कर पाऊँ. Then I come back to the post production, you know, how do I train myself in post producing a podcast, and then eventually doing the marketing of it and building a page out, and all of them I would say हाँ चुनौती कह लें आप उन्हें या एक तरीके का आप चैलेंज कह लें. लेकिन now when I reflect back, मेरे लिए it's all like a sense of very much like an accomplishment कि किस तरीके से it turned into an opportunity. तो I think very simply put, मैं भी मुस्लिम को जब देखा तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि oh it's such a big task जो मुझे करना पड़ेगा. It was really like कि मैंने चूज किया ये पहाड़, तो मुझे सीखना चाहिए कैसे चढ़ते हैं इस पहाड़ को. मजा आया. और मरियम अपने लोगों के बारे में भी बताइए. उसमें हमने देखा कि लिप्स बने, इसके पीछे क्या लॉजिक है? एक्चुअली वो क्रेडिट मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त है. शी इज अ डिजाइनर हरसेल्फ एंड शी इज अ विजुअल आर्टिस्ट. तो जब मैंने उसे और मेरे साथ तब मेरी को-होस्ट भी थी सीजन 1 में, मैं और मेरी को-होस्ट साथ में कर रहे थे. तो जब हमने ये डिस्कस किया कि कोई भी लोगो देखेगा मैं भी मुस्लिम का, तो हम उन्हें क्या समझाना चाहते हैं, यू नो, क्या जहन में हमारे आता है. तो बहुत सारी कहानियां थी. तो अगर कोई सीजन 1 हमारा सुनेगा तो उसमें मेरी और जो मेरी उसका को-होस्ट थी सभी का, उसमें हमने अपनी कहानियां बताई कि एज एन इंडियन मुस्लिम क्या क्या हम लोगों ने एक्सपीरियंसेस फेस किए. यू नो, सभी का जो मेरी को-होस्ट थी उसने कुछ एक्सपीरियंसेस फेस किए थे, मैंने कुछ किए थे. तो ये हमारे एक्सपीरियंसेस ना छितरे छितरे से हैं कि हाँ आपने कभी सुना होगा कि मुसलमानों को फ्लैट आसानी से नहीं मिलता है. यहाँ आपने सुना होगा कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स वर पार्ट ऑफ सम कम्युनल वायलेंस, या यू नो वो कहानियां सुनते हुए हम लोग आते हैं लेकिन हम बहुत उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं. तो ये सारी कहानियां इधर उधर हैं, लाइक कहीं से कुछ सुना, कहीं से किसी ने कुछ बोला. तो वो एक तरीके से हमने कहा कि ये सारी कहानियों को हम एक साथ कैसे लेके आए. तो वो होंठ, वो आंखें, यू नो, वो नजरिया, वो सब उसने एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से पेश किया अपने आर्ट में. एंड उसने मुझसे पूछा कि यू नो कलर क्या तुम्हारे जहन में आ रहा है. तो मैंने बोला मुझे तो आसमानी लगता है. कि मतलब है ना, आई लुक अप एट द स्काई, इट्स लाइक अ कैनवस ऑफ स्टोरीज एंड एवरीथिंग. एंड you know, the पहली thing लोगों के ध्यान में कि इसको हरा करते हैं. Like everyone was like green because Muslim, and I was like, that is what I'm challenging, right? That is the challenge of stereotypes. कि Indian Muslim is stereotype कि Muslim का color, you know, quote unquote is green. So I was like, नहीं, there is color को तो communal बनाया गया है. So we'll take orange, you know, like orange is a beautiful color. Like I love orange as a color. It's part of our flag. So maybe Muslim became the art design that it is today because of all those thoughts. Very nice and so thoughtful about your logo as well. Nida, I found you very much energetic. I mean to say that your energy also looks infectious. You also tell about the problems and the hurdles, the challenges which you faced, and how you came above everything. Thank you so much, Naima, for your lovely words, first of all. मेरे challenges, मैं क्लास 8 से मुझे एक इंजीनियर बनने का शौक था. हालांकि मुझे इतना इंजीनियरिंग का पता नहीं था कि क्या इंजीनियरिंग में होता है, बट वी हैव अ टैग इंजीनियरिंग. सो मुझे 8th क्लास से ही एक लगन लगी हुई थी कि मुझे इंजीनियर बनना है. तो जब मैंने अपनी क्लास 12th पास करी, आई स्टार्टेड गिविंग माय इंजीनियरिंग एग्जाम्स. तब मेरे फादर को आसपास बहुत लोगों ने ये चीज बोली कि इंजीनियरिंग में एडमिशन ना कराएं क्योंकि वहां पर ऑलमोस्ट लड़के ही होते हैं और लड़कियों का वहां जाना ठीक नहीं है. एंड हम जानते ही हैं कि हमारी कहीं ना कहीं मुस्लिम फैमिलीज में थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं रिलेटिव साइड से या कहीं ना कहीं से हमें मिली जाती है. तो ऐसे ही एक रिस्ट्रिक्शन वहां पर रही थी. बट थैंक्स टू माय पेरेंट्स, वो बहुत ही सपोर्टिव रहे इस मामले में कि मेरे फादर ने वो चीज़ नहीं सुनी.
बट स्टिल मेरे ऊपर एक प्रेशर था कि लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि लाइक आई एम डूइंग इंजीनियरिंग, और मेरी क्लास में सिर्फ 10 लड़कियां प्रेजेंट थी और बाकी सारे लड़के थे। और मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन थी, जिसको मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करती थी। एंड इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग, एंड हमारे उसमें इवेंट्स होते थे। और अभी तो आप सिर्फ बोलते हैं। बिल्कुल, इवेंट्स होते थे, इवेंट्स में बच्चे जाकर बात करते थे और मैं कोने में साइड में खड़ी रहती थी, क्योंकि मुझे बात करने में बहुत हेजिटेशन होती थी। ना मुझे कभी, मेरा वैसा बैकग्राउंड नहीं रहा कि मैं लोगों से बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ या कुछ, तो आई वॉज वेरी मच इंट्रोवर्ट। और वो मैं इंजीनियरिंग के एंड तक मुझे वो चीज फेस करनी पड़ी। बट और जॉब की बात थी तो जॉब मुझे नहीं करनी थी। मेरे फादर ने मुझे बोला कि आप इंटरव्यू देकर तो आओ, बात की बाद में देखी जाएगी। एंड व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू, मेरे पास ऑफर लेटर था, देन आई डिसाइडेड कि ओके कर ही लेती हूँ जॉब। एंड दैट वाज द वेरी बिग डिसीजन ऑफ माय लाइफ, बिकॉज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है एक लड़की के लिए। और वहां जाकर मुझे थोड़ा कम्युनिकेशंस में आसानी हुई, and I converted myself from an introvert to an extrovert. अब मैं लोगों से नॉर्मली बात करती हूँ, आई मीन कैजुअली, कोई भी मुझे मिल जाता है तो मैं उनसे बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ। एंड विच मेक्स मी फील गुड कि मैंने उस चैलेंज को बहुत अच्छे से टैकल किया और मैंने फेस करा और मैं वहां से निकली। एंड फिर मैंने हे वुमन ईयर स्टार्ट किया। यहाँ पर भी मैं बहुत कन्वर्सेशंस करती हूँ वुमेन्स के साथ। So, ये मेरी लाइफ की जर्नी रही है। एंड अब तक भी आई एम जैसे निदा ने अपनी इस वीकनेस को ही अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया एंड शी स्टार्टेड वर्किंग ओवर इट। तो दुनिया में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को निदा से रिलेट कर रहे हैं। शायद एक वक्त को मैंने भी सोचा कि हाँ, हमारे साथ भी ऐसा ही था। तो ये सारे चेंजेस आपकी बेहतरी के लिए हैं, और आपको अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है और उससे आगे बढ़ना है। जैसे निदा ने उसको अपना एक प्रोफेशन ही बना लिया। आगे बढ़ते Naima, हैं। we should have a chat with Nida and talking about के introvert extrovert कैसे बनते हैं, like the introverted extrovert, you know, that is another like chapter altogether. Oh my God, Maria. So moving on to Aisha, what was your motivating force? आपका motivating force क्या था जिसने आपको इतने सारे फील्ड्स में काम करने का हौसला दिया? सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर रही थी निदा से, जिन्होंने बताया कि इंट्रोवर्ट थी फिर एक्सट्रोवर्ट हो गई। तो बचपन में मैं भी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी और बहुत ज्यादा एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स था, यू नो। और अभी जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो मैं उस चीज को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है बच्चों को जो घबरा जाते हैं या डर जाते हैं कि यार ये कम्युनिकेटिव नहीं है या फिर उतना स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है बच्चा, तो मुझे लगता है कि ये चीजें at any age can come in your life. For me it came after class 12th in college. लखनऊ में I was in IT college and I don't know what happened, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वहाँ पर अच्छा एक माहौल मिला और मैंने थिएटर करना शुरू किया। तो थिएटर की वजह से एकदम से पर्सनालिटी पता नहीं चेंज हो गई और यू नो आई बिकेम मोर आउटस्पोकन। आई स्टार्टेड टेकिंग पार्ट्स इन एक्टिविटीज और बहुत कुछ लिखने का शौक पहले से ही था, इंग्लिश में लिखती थी। फिर शायरी का जैसे शौक हुआ तो उर्दू में कोशिश करी और उस वजह से मुखातिब वाज एक्चुअली एन एफर्ट टू लर्न एंड इट स्टिल इज। मैं खुद भी अभी शायरी कितनी भी कर लूं लेकिन अभी भी मैं एक उर्दू की स्टूडेंट ही हूँ। तो एक एफर्ट था कि सब लोग मिलके साथ में सीखें और इस वजह से मुझे उसमें मुश्किल कोई पेश नहीं आई, क्योंकि मैंने जब भी जो भी काम किया है अभी तक लाइफ में, पता नहीं मैं बहुत दूर का जो है वो नहीं सोचती हूँ कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। बस मुझे अगर लगता है या एक गट फीलिंग आती है कि ये काम अच्छा रहेगा, मुझे करना चाहिए एंड आई हैव दैट इन मी एंड आई शुड डू इट एंड आई फाइंड सम सपोर्ट कि ओके हाउ डू आई डू इट। आई स्टार्ट प्लानिंग, देन आई स्टार्ट डूइंग इट, देन आई डोंट थिंक कि इसमें क्या आएगा चैलेंज। मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो धीरे धीरे चैलेंजेस अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज आप ऑलरेडी उसमें उतर चुके हैं।
तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम जो भी आ रहा है रास्ते में। तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। हर में भी मुझे कोई ऐसा बड़ा चैलेंज नहीं आया, बल्कि बहुत जल्दी 1 महीने में 3-4 हजार मेंबर्स ग्रुप में जुड़ गए थे। बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने और लोगों को जोड़ा, क्योंकि उनको एक क्लियर विजन दिख रहा था, उनको एक क्लियर मोटिव दिख रहा था, और उनको नीयत दिख रही थी। तो जब आपकी नीयत साफ होती है, हर काम आसान हो जाता है। तो बस ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी कम्युनिकेटिव एंड यू हैव टू यू नो द पीपल शुड नो दैट इस काम के पीछे आपका क्या मोटिव है। और बस अल्लाह ताला सारी चीजें आसान कर देता है। डिजिटल मार्केटिंग का जो फील्ड है उसमें मुझे दिक्कत पेश आई, because being a woman, being a founder, I face challenges with a few people जिनको मैंने हायर किया। बहुत recent experience मुझे ऐसा मिला। He used to mansplain a lot. This term, you know, he used to feel कि because I hired an experienced person, because I wanted good work for my clients, he used to mansplain things to me कि अच्छा मतलब you know, thinking less of a woman and taking orders from a female, that is difficult for a lot of men. तो वहां पे मुझे प्रोफेशनल फील्ड में ये दिक्कत पेश आई, जो मुझे लगता है बहुत सारे प्रोफेशनल्स को या ऑफिसेज में या वर्क कल्चर में ये दिक्कत आती है। इसके अलावा मुझे अपने दूसरे कामों में कोई दिक्कत नहीं आई। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट कि आपको सब चीजें देखनी है, और ऐसे टाइम पे जब बच्चों का भी ऐसा एज है कि दे आर ग्रोइंग, so you have to manage things, and alhamdulillah I have my family close, so that is a big blessing for me. So otherwise तो नहीं, मतलब इतना मैं कर पाती, मुझे ये लगता। बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताई, और मैं 2 लफ्जों में इसको बयान करूंगी। ए जज्ब दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, ए जज्ब दिल गर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, 2 गाम चलूं मंजिल के लिए और सामने मंजिल आ जाए। तो जरूरत है आप लोगों को हौसले की और हिम्मत की। अगर आपके अंदर हौसला और हिम्मत है तो मंजिल खुद ब खुद आपके सामने मौजूद होगी। बेशक। I can see the energy, the enthusiasm and diligence with which you all are working. For you, sky is the limit. We know, we would like to know about your future plans, because बिना ख्वाब देखे आप आगे नहीं बढ़ते। तो आप सबके भी कुछ ना कुछ ख्वाब होंगे, कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स होंगे जिस पे आप आगे काम करना चाहेंगे, या आपके वो पैशन प्रोजेक्ट्स होंगे। तो एक एक करके मैं जानना चाहूंगी। सबसे पहले मरियम से शुरू करती हूँ। मरियम, आप आगे क्या करना चाहती हैं? और I like how नाइमा ने बस मुझे पकड़ लिया है कि मरियम से स्टार्ट करूंगी मैं, and then you know everyone gets the time to like decide their answers as well. But कोई बात नहीं, इसके बाद I will like do it counterclockwise. So I think Naima, to just answer your question, मेरे लिए, I mean of course there are big aspirations. So I think जब मैं aspirations की बात करती हूँ, there are plans to really like take not just the project I'm working on, मैं भी Muslim forward, but also work on more literary projects, actually, you know, work towards developing my own body of work. लेकिन I think वो चीज चाहे जितनी भी like I would feel I gets me inspired to keep on working. I think I really love the process of producing new work. I really love the process of writing, and I think वो जज्बा मेरे अंदर constantly becomes the reason why every day I'm like 1 घंटा और निकाल के I can perhaps do some more research. 1 घंटा और निकाल के I want to really spend time on figuring out who my next guest on मैं भी मुस्लिम will be. क्योंकि that doesn't fatigue me. उससे मुझे थकन नहीं होती। You know, मुझे नहीं लगता कि अरे मेरे ना 10 और एपिसोड हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि आई हैव अचीव्ड द बेस्ट। मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं एक दिन पे like today I'm having this conversation with you all, and that I'm very much enriched by the process. So I think personally मैंने ये एक तरीके से अपने अंदर I have honed this skill that I get inspired by the process, and I think that's how I look at all the other bigger projects as well. And we also wish best of luck to you and hope you shine like a rising star. Thank you. निदा, अब आप बताइए आपके मन में क्या चल रहा है आगे, और क्या क्या करना है आपको? I always prefer working towards women empowerment, जो हमेशा से ही मेरा एक मोटिव रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट पे ही काम करूंगी मैं।
So similarly, I am working on a startup. I started a startup, and which is Your Sathi. It is an anonymous counseling platform for women. So it is just in an ideation phase. I'm working on its application, and I will launch it soon, maybe in a month or so. In the upcoming months, I'll surely gonna launch it. So what does it provide? Anonymous counseling, certified counselors say, because there are many women who are not able to express themselves, और बहुत women ऐसी हैं जो mental issues से face कर रही हैं, but किसी को भी नहीं बताती हैं. They feel कि बताना is not correct. ये तो normal है, mental issues हो रहे हैं, you are feeling depressed, but they feel like it's normal. And sometimes वो क्यों नहीं बता पाती, because वो ये सोचती हैं कि what they will think about me, सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं अगर ये चीज बताऊंगी. तो इसलिए मेरे दिमाग में ये कंसेप्ट आया कि एनोनिमस काउंसलिंग का, कि अगर मैं इस चीज को एनोनिमस रखूं तो शायद वो अपनी बात काउंसलर से आके बताएं और उनकी मेंटल हेल्थ जो है उसको वो कुछ तरीके से बेहतर कर पाएं. बिकॉज हमें मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस फैलानी बहुत जरूरी है ऐसे टाइम में जहां पर हम मेंटल हेल्थ की काफी बात करते हैं, बट जब बात आती है किसी एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की, तब हर कोई यही बोलता है कि साइकियाट्रिस्ट इज पागलों का डॉक्टर. पागलों के डॉक्टर मतलब तुम क्या पागलों के डॉक्टर के पास क्यों जाना है तुम्हें? तो वो एक हमें उस चीज को खत्म करना है, वो जो एक मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है. और जो हमारी जितनी भी वुमेन हैं, जितनी भी हमारी सिस्टर्स हैं, उनको इस प्रॉब्लम से हेल्प करने के लिए इट विल ऑल्सो कंटेन अ फोरम वेयर जो वो अपनी जो बातें हैं, अपनी प्रॉब्लम्स एक ग्रुप में भी शेयर कर सकती हैं. तो ग्रुप में एक सेफ स्पेस रहेगी वुमेन के लिए. इट इज ओनली फॉर वुमेन. तो जब बचपन से ही हमें ये सुनने को होता है ना कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियां हैं, तो यस इट इज अ सेफ प्लेस. So I am trying to create that safe place for women where they can share their feelings with others. Wow. That is really wonderful, because even I feel so that life of a woman starts from the struggle right from the womb. They face innumerable problems. If we keep counting, we'll just go on counting what are the problems they are facing. And all these problems in one or the other way affect their mental health. And yes, Nida, as you pointed out, this issue needs to be highlighted. We should be more vocal about it and come forward. हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बात करनी है. और इसका जो टैबू है कि जो आपने कहा, जैसे निदा ने बोला कि हम अगर साइकियाट्रिस्ट को दिखाने जाते हैं तो लगता है कि पागलों के डॉक्टर के पास कोई क्यों जा रहा है. इस गलतफहमी को खत्म करना है, उस टैबू को खत्म करना है, तभी लोग आगे आएंगे और अपनी परेशानियों को जाहिर करेंगे. वरना वो उनको कहीं ना कहीं अंदर उस परेशानी से, उस डिप्रेशन से वो घुटते ही रहते हैं. So it is very nice that you are trying to work over it. Thank you so much. Moving on to Aisha with the same question of your future projects. नाइमा, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो अभी मेरे चल रहे हैं उसमें जो मेरा फ्यूचरिस्टिक एक सोच है कि इसको कहाँ ले जाना है, तो मुखातिब के बारे में तो मैं यही कहूंगी कि जैसे हम अभी वर्कशॉप्स करा रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ यही है कि जो नए लोग शायरी कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब गलत चीजें नॉर्मलाइज होने लगती हैं तो वो चीजें एक्सेप्टेबल हो जाती हैं. तो उस तरह से हमें उर्दू जबान को अगर बचाना है, और अगर जो लोग उर्दू की तरफ आ रहे हैं उनको चीजें सिखानी है या उनको सही करना है, या एटलीस्ट उन्हें एक इंस्पिरेशन देना है कि आप चीजें अगर कर रहे हैं तो सही तरीके से करें. शायरी अगर कर रहे हैं तो सही तरीके से करें. अगर गजल कहना चाहते हैं तो उसका टेक्निक सीखें कि उसमें एक्चुअली किस चीज को फॉलो करके आप एक अच्छी गजल कह सकते हैं, और नहीं कह सकते हैं तो आप नज़में कहें. तो उसका मेरा बस एक आगे का एक फ्यूचर प्लान बस यही है कि जितने भी लोग उर्दू सीख रहे हैं उनको कनेक्ट करके टीचर्स से और बड़े शायरों से उनको बस इसमें एजुकेट करें. दैट इज ऑल मुखातिब इज अबाउट. और फिर हम प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें कि आपने मेरे साथ ऐसे जो लोग जुड़े थे शुरू में, बहुत अच्छे शेर कहते हैं. अब उनको कुछ नहीं आता था, मतलब दे यूज्ड टू जस्ट राइट एनीथिंग बेबहर और आजाद, लेकिन अब बहुत अच्छे शेर कहते हैं क्योंकि वो उनके अंदर वो एक सीरियसनेस थी और उन्होंने उसको सीरियसली लिया और सीखा. तो बस वी आर जस्ट अ प्लेटफॉर्म. और दूसरा हर की बात अगर मैं करूं
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर एवरी वुमन, जैसा आई सेड अर्लियर, दैट इज माय मिशन, और उसी पे काम हम कर रहे हैं। किसी ने अभी सवाल भी पूछा था ऑडियंस में से, तो हम क्या करते हैं कि I am quite approachable if anybody wants to contact me and then let me know, you know, कि किसको क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उनकी क्या एजुकेशन है। और जॉब्स वगैरह का तो ये हाल है कि पिछले 1.5 साल में पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, तो जॉब दिलवाने की गारंटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थ्रू अ जॉब, ये सब तो हम नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी जो भी आपके टैलेंट है, कैपेबिलिटीज हैं, उसको देखते हुए कम से कम हम आपको सही लोगों से कनेक्ट करवा सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड गुड नेटवर्क, you know, so that is what we do, and we get resumes or women who want to do something, and then we try to see कि कैसे इनको ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक केस स्टडी थी जिसमें बहुत फैमिली बहुत ज्यादा परेशान थी, सो वी आल्सो हैव अ सपोर्ट ग्रुप वेयर वी कलेक्ट डोनेशंस, हर सपोर्ट के नाम से। उसमें हमने उस फैमिली के लिए डोनेशंस कलेक्ट किए अच्छे खासे। और अभी रिसेंटली 2 लड़कियों को गर्ल चाइल्ड एजुकेशन फंड हमारा एक चलता है, जिसमें हमने 2 लोगों की, लड़कियों की पूरी फीस भरी साल भर की। तो सपोर्ट ग्रुप में हम एक किटी चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट किटी गर्ल चाइल्ड फंड्स। क्योंकि वैसे तो हम लोग जो किटी करते हैं, औरतें जो बहुत सारी किटीज करती हैं, वो कितना अमाउंट यू नो इन सब चीजों में, फालतू की आउटिंग और यू नो उस तरह की चीजों में खर्च करती हैं। Why not use a small amount towards a good cause? So that we have started. उसमें आप कुछ भी कितना भी अमाउंट मंथली डोनेट कर सकते हैं, वो एजुकेशन फंड हमारा चलता है। इसी तरह से बस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जो भी रास्ता जिसके लिए जैसे भी निकल सकता है, उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। यही है इसका मकसद, और इसी तरह से काम होता है। और तीसरा, कोर्टशिप की जहां बात आई, तो मैंने दोनों को जैसे कनेक्ट कर दिया। तो हर डिजिटल एम्पावरमेंट हमारा एक कैंपेन है, जहां पे हम औरतों के लिए आगे वर्कशॉप्स प्लान कर रहे हैं कि आप कैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख सकते हैं और कर सकते हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको बेटर सर्विसेज चाहिए, तो आप हमसे कनेक्ट करके वो सर्विसेज हमसे भी ले सकते हैं ऑन अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट। सो दैट इज वन थिंग आई एम प्लानिंग, एंड बिकॉज उसके बिना बिजनेस चलना इज लाइक नहीं पॉसिबल है, बिकॉज फिजिकली हम मिल नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे एक दूसरे को, वैसे तो सब कुछ डिजिटल है। तो दैट इज द प्लान, एंड दैट इज माय 3 प्रोजेक्ट्स दैट आई एम वर्किंग ऑन। फिलहाल तो इन्हीं को ठीक ठाक कर ले जाऊं तो बहुत है। दैट्स ऑल। इंशाल्लाह आपको खूब कामयाबी मिले इसमें, और आप इसको बहुत आगे लेके जाएं। मरियम, हम आपकी तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है। नजफ रिजवी पूछते हैं, माय क्वेश्चन टू द पैनलिस्ट इज हाउ इम्पोर्टेंट डू यू फील इज द नीड फॉर इंडियन मुस्लिम लेडीज टू शन द स्टीरियोटाइप्स, सेल्फ मिसकंसेप्शंस, realize their potential and join the mainstream across various disciplines? I think the question of how important it is can only stem when we understand that this is not a question per se, but it's not like how, it is more of like, I don't think so how is the answer. The idea is like, हम जब ये पूछते हैं कि stereotypes, I think what could be done is whatever makes you uncomfortable in whichever setting you are, you should actually speak out. I think आज जितने भी पैनलिस्ट हैं उन सबसे ज़्यादा हमने यही सुना, मैंने पर्सनली ये देखा कि हम लोगों ने from a very early age realized that there were some things we wanted to do, and there was some kind of like question marks around it, कि whether or not you can do it, whether or not you will be able to do it, have certain stereotypes. जैसे I think maybe Muslim का idea is of breaking those stereotypes, के कई बार मुझे लोगों ने कहा है कि from outside the Muslim community, hey, you don't look like a Muslim. And मैं सोचती थी कि मतलब what am I supposed to look like? मतलब कई बार होता है, अरे हमें तो लगा नहीं कि तुम मुस्लिम हो, you know. And internally, like within the Muslim community, a lot of times like, अरे यार you're not a practicing Muslim, so how can you be a Muslim? And I'm like, यार ये किसने definition निकाली, you know? So when it comes to stereotypes, what I really feel is that you have to it's not about how important it is really about why you need to break it, because it only stifles you within. अगर stereotype के साथ हम जीने लगते हैं तो एक point के बाद वो हमारा identity बन जाता है. The question should be asked, are you ready to live with that stereotyped identity?
And I will actually go back to the conversation I had with Dr. Aqsa Sheikh last time on Main Bhi Muslim, where she said that it is a matter of turning the negative stereotypes into the positive stereotypes. And this is what we should be doing as Muslim women, like reincarnating into different forms of stereotypes. अगर आपको Muslim woman समझना है, तो आप कितने सारे Muslim women देख सकती हैं, and then you'll be like, okay, there are like so many Muslim women that have different paths in life, that have different objectives in life. And which stereotype would you choose? तो वो आपका एक nomenclature जो एक stereotype बनता है ना कि मुस्लिम वुमन है तो इस तरीके की दिखेंगी, ये पहनेंगी, यहाँ जाएंगी, ये लाइफ में करेंगी, that breaks down. So I would say, I think to answer Najat Rizvi's question, it's like it shouldn't be like how stereotypes can be broken. It's like how many stereotypes can we create, and that will eventually break all the stereotypes. So if like Nida and Mariam is wearing Western bird or a Western dress, or Aisha and I am wearing an Indian, or I am wearing a hijab, it doesn't mean that we are bound to be like this. It's our own choice. It's the way we are comfortable to live in this world. So chat box में और भी questions हैं, हम उनको लेंगे, लेकिन I came to know that Mariam has performed poetry over 20 stages across Asia. And they have been published in various newspapers and magazines also. So we would like to listen a piece of poetry from you and then from Aisha. Till then, I'm just going through all the questions in the chat box. Okay, so actually मैं आज जो poem पढ़ूंगी, that was the first poem I wrote for मैं भी Muslim. And उसका premise ही ये है कि what is मैं भी Muslim. So I'm just gonna read that. And I will go back to my my browser because yes. So मेरी poem का, or I would say like the way I wrote it was मेरी खामोशी की आवाज. So the poem goes like this. बैठे बैठे बोर हुए, करना था कुछ काम, शुरू करते हैं एक नया दिन लेकर एक नए डर का नाम. आज का डर है मेरी आवाज, जिसकी बुलंदी अरसों पुरानी खामोशी को तोड़ती है, जो दबे अल्फाजों को खुल के बयां करती है, जो मेरी रूह को मेरी सच्चाई से वाकिफ कराती है, और जो मेरी हिंदुस्तानियत को मेरी मुसलमानियत से मिलवाती है. क्या मुझे अपनी आवाज से डर लगता है? नहीं, लेकिन हाँ उसके उठाए सवालों से. तुम्हारी आवाज कहीं तुम्हें किसी मुश्किल में ना डाल दे, तुम्हारी आवाज से कहीं तुम पर कोई आफत ना आ जाए, तुम्हारी आवाज कहीं तुम्हारी खामोशी ना बन जाए. ये डर पैदा करती है मेरी आवाज मेरे अजीजों के दिलों में, क्योंकि खामोश रहना खतरे में होने से तो बेहतर है. आवाज गिरवी रख दो और बेखौफ बेतवज्जो वाली जिंदगी जियो. यही कहते हैं ना घर वाले, उतना ही बताओ जितना जरूरी है, मुसीबत मोल लेने की क्या जरूरत है. मेरी आवाज से डर नहीं लगता है उन्हें, उस आवाज की सच्चाई से डर लगता है. वो सच्चाई जिसको जीते तो हम रोज हैं, लेकिन बयां नहीं करते, इस डर में कि कहीं कोई मुश्किलात ना पैदा हो जाए, कि कहीं नफरत की आग इस आवाज से हमें पहचान ना ले. सालों तक इस डर को मैं अपनी जिंदगी में सींचती आई, इतनी बार फूंक फूंक के कदम रखे कि शायद सही से चलना ही भूल गई. लेकिन डर की दीमक तो मुझे ही खोखला करने लगी और मुझसे मेरी पहचान और उसका हौसला छीनने लगी. इस हद तक कि खुद की आवाज से ही भरोसा उठ गया मुझे. मेरे बोलने से क्या होगा, जो जैसा चला आ रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा. तो खामोशी से ही खुशी खुशी समझौता कर लिया. औरत होने का डर, मुसलमान होने का डर, अंधेरी सड़क पर चलने का डर, और अब कागजी दस्तावेज दिखाने का डर. ये डर मेरी जिंदगी का मिराज सा बन गया है, जो सुकून का सिर्फ एक ख्वाब दिखाता है, जिसकी तलाश में चलती रहती हूँ, चुपचाप रास्ते नापती रहती हूँ. पर अब ना थक गई हूं मैं इस डर से, और खल चुकी हूँ इसकी दी हुई खामोशी से. आज से इस डर से पैदा हुई खामोशी को अपनी आवाज के हौसले में तब्दील करती हूँ. आज एक कम डर के साथ जीती हूँ,
अपनी पहचान थोड़ा खुल के बयां करती हूँ। तो मैं और मेरी आवाज खुल के कहते हैं, मैं भी मुस्लिम, जैसी भी, जितनी भी, मैं भी मुस्लिम। बहुत खूबसूरत। Straight, it was from the heart and it was going straight into our heart. Beautiful. बहुत ही कमाल लिखा है आपने मरियम। अच्छा मरियम। आयशा, आपके लिए चैट बॉक्स में भी एक क्वेश्चन है जिसको फरहीन मलिक, डॉक्टर फरहीन मलिक पूछ रही हैं, have you thought about interacting with Urdu Academy because they are also conducting Urdu workshops? Yes, they conduct paid workshops and they do have classes. उर्दू एकेडमी के साथ तो मैंने प्रोग्राम्स भी किए हैं और लेकिन हमारी फंक्शनिंग जो है वो थोड़ा ज्यादा पर्सनल लेवल पर है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट इदारा है और हम एक एनजीओ है। मुखातिब फाउंडेशन इज अ रजिस्टर्ड एनजीओ। सो हम अपने लेवल पे काम करते हैं और पर्सनली कनेक्ट करके लोगों से, वरना उनके साथ भी मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। जी, अब हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ अपने चंद अशार पेश करें। जी, तो क्या सुनाऊं मैं आपको। अभी मुझे याद था और बिल्कुल सडनली मेरे जहन से वो शेर निकल गया, लेकिन रिसेंटली मैंने एक शेर कहा था जो काफी पॉपुलर हो गया सोशल मीडिया पे। वो बस एक ही शेर है और वो कोविड टाइम्स का जो डिप्रेशन जिसने हम सबको घेर रखा था, उसको देखते हुए बिल्कुल जहन में एक मिसरा हुआ था, उस पर ये शेर कहा था कि हद्दे निगाह देखिए बनने को गम गुसार, हद्दे निगाह देखिए बनने को गम गुसार, उसको भी चुप कराइए जो रो नहीं रहा। तो ये एक शेर था और ये काफी लोगों ने कनेक्ट किया और उसको पसंद किया, क्योंकि हम एक ऐसे सीन में आ गए थे, एक ऐसी सिचुएशन में कि सेकेंड वेव में इतनी बुरी खबरें सुनकर हम जो है ना, एक टाइम ऐसा आ गया था कि शॉक भी नहीं होते थे, शॉक लगना भी बंद हो गया था, तो उस वक्त ये शेर कहा था, हद्दे निगाह देखिए बनने को गम गुसार, उसको भी चुप कराइए जो रो नहीं रहा। यानी कि वो ऐसे फील कर रहा है लेकिन दिखा नहीं रहा। और एक गजल जो है उसके कुछ अशार, आवाज रिपीट हो रही है ना, आप देखिए, किसी की तरफ से आवाज रिपीट हो रही है और कुछ अब ठीक। तो मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अगर आप लोग मुझे बता दें, नाइमा या मरियम कोई। जी, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, आ रही है। नाइमा की तरफ से नेटवर्क इशू। क्लियर। ओके, तो मैं गजल सुना देती हूँ और उसके कुछ शेर हैं। मतला है कि पाबंदिए हिसार से आगे निकल गए। एम्पावर्ड मुस्लिमास का जो ग्रुप अक्सा शेख ने बनाया है, उनके लिए मैं ये गजल जो है डेडिकेट करना चाहूंगी। तो डॉक्टर अक्सा को तो पहले बहुत बहुत थैंक यू और मुबारकबाद। तो शेर है कि पाबंदिए हिसार से आगे निकल गए, नफरत से और प्यार से आगे निकल गए, इस दर्जा इख्तियार उसे खुद पे दे दिया, इस दर्जा इख्तियार उसे खुद पे दे दिया, हम उसके इख्तियार से आगे निकल गए, इस दर्जा इख्तियार उसे खुद पे दे दिया, हम उसके इख्तियार से आगे निकल गए। आवाज दी गई हमें ताखीर से बहुत, आवाज दी गई हमें ताखीर से बहुत, इतनी कि हम पुकार से आगे निकल गए, इतनी कि हम पुकार से आगे निकल गए, मुड़कर भी देखने की इजाजत नहीं मिली, मुड़कर भी देखने की इजाजत नहीं मिली, हम भी रहे गुबार से आगे निकल गए। और एक शेर है इसमें कि अपने कदम को अपनी ही जानिब बढ़ा लिया, अपने कदम को अपनी ही जानिब बढ़ा लिया, दुनिया की हर कतार से आगे निकल गए, इस दर्जा इख्तियार उसे खुद पे दे दिया,
हम उसके इख्तियार से आगे निकल गए। तो ये गजल सभी एम्पावर्ड मुस्लिमास के लिए, बहुत डॉक्टर फरहीन और खूबसूरत, शादाब, बहुत बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया। चैट बहुत बॉक्स में तारीफ लगातार आ रही है आपके, माशाल्लाह अशार बहुत खूबसूरत है, ये गजल बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया, आप सभी अ, लोगों का बहुत शुक्रिया। निदा, आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा अहम क्या चीज है जो कि एक फीमेल के लिए जरूरी है ताकि वो अपने ख्वाब पूरे कर सके और जो उसका पैशन है उसको परस्यू कर सके, उसके लिए क्या चीज बहुत जरूरी है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं अपने ही जो मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है मैं उसी से बताऊंगी, अपने एक्सपीरियंस से। जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्लानिंग। आपके पास प्लानिंग है तो आपके पास एक क्लियर विजन है कि आपको क्या करना है, और एक बार आपके पास वो चीज है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता आपको जो भी अचीव करना है। हालांकि लोग बहुत कोशिश करेंगे आपको पुल बैक करने की, बट अगर आपके पास एक प्लानिंग है, आपके पास एक पाथ है, डिफाइंड है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकती हैं जो आप करना चाहती हैं। प्लानिंग, खाली प्लानिंग काम नहीं करेगी, प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन इज द की। इम्प्लीमेंटेशन करें हम, एंड इम्प्लीमेंटेशन विद सक्सेस, consistency and dedication will surely add flavors to your success. अगर हम ये तीन चीजों के साथ, बिकॉज कभी कभार हमारे साथ ये होता है, हमने प्लानिंग करी है, मैंने ये प्लान किया है कि आज मुझे ये चीज करनी है, मुझे, या मैंने एक डेडलाइन सेट करी है कि मुझे इस वीक में ये कंप्लीट करना है, बट कई बार ऐसा होता है कि आई एम नॉट मोटिवेटेड, मुझे मोटिवेशन नहीं आती अंदर से, और मैं फील करती हूँ यार आई एम नॉट मोटिवेटेड, अब मैं कैसे करूँ, मन ही नहीं करता। तब मोटिवेशन से हटकर आपकी डेडिकेशन काम आती है। वो चीज आपकी डेडिकेशन होती है कि आप कितने डेडिकेटेड हो कुछ चीज करने के लिए, और आपके पास प्लान है, आपको पता है कि मुझे उस हफ्ते तक वो चीज कंप्लीट करनी है। तो मेरे दिमाग में एक कॉन्स्टेंटली एक पिंग होता रहेगा खुद ब खुद ही कि निदा यू हैव टू डू दैट, एक हफ्ता बचा है, इट्स जस्ट अ वीक, वीक खत्म होने वाला है, तुमने अभी तक नहीं किया, तो मैं उस चीज को करूंगी। मेरे दिमाग में जब वो बार बार आएगी तो मैं करूंगी। सो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर थिंग इज बिलीविंग इन योरसेल्फ। अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने ऊपर डाउट ना करें और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें, तो आप कुछ भी अचीव कर सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत बात निदा ने बोली है, और ये मैसेज सबके लिए है कि आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है खुद के ऊपर भरोसा होना। लोग आपको बहुत तंज करेंगे, हो सकता है कि आपको पीछे करने की कोशिश करें, जिंदगी इसी का नाम है, लेकिन आपको आगे बढ़ते जाना है अपने इस भरोसे के साथ। Naima, can I just add on to that answer as well from Nida? I'll just take 30 seconds. Yeah. Thanks. So, because jo Nida, like what she was saying about planning, I feel one thing which I really have learned from my life, and I feel is very important, especially for women, is to have like a solidarity network. It's to have women who can support you on this journey without necessarily being part of the journey. जैसे मुझे एक बहुत important चीज जो मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज करी is that I've had a very strong connection of women friends who have stood by me knowing that I am committed to a cause, और उस कमिटमेंट को देखकर और उस जज्बे को देखकर उन्होंने मुझे हमेशा एक constantly हौसला अफजाई करी है मेरी. And especially, actually, I'll go back to the question that was asked on how women can shackle stereotypes. One of the biggest stereotypes जो औरतों को सुनने मिलता है is, and I'm going to quote it because ये बहुत सुनती हैं औरतें, is औरत ही औरत की दुश्मन होती है. ये किसने पैदा किया ये stereotype? ये किसने कहा ये कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है? लेकिन क्योंकि ये एक तरीके से मुझे ये लगता है it's like अगर आप एक if you make women enemies of each other, then that solidarity gets broken down completely. Lekin if I look at women, I'm like, wow, like I'm just gonna like root for her. I'm just gonna support her because I love the energy that she brings. And that's how you break stereotypes. That is the biggest stereotype, that women are like each other's enemies. Like who said that? You know, but it is something I'm pretty sure hum sabne suna hai. So I think just
supporting each other, like to Nida, to Naima, you as well, and Aisha. I mean, I think just knowing that I'm sitting here with you and I can just clap for you and know that I am personally somewhere rooting for you next time we catch each other up, it's just like so empowering to me, you know. And I think that's one way of really achieving what you want to achieve in life as women. Yeah, I agree with you. There is no doubt about it that Dr. Aqsa Sheikh has stood like a pillar for everybody, and that she is the one who made this possible. उन्हीं की वजह से आज हम सब जुड़ पाए हैं. तो ये कहना बिल्कुल गलत है जो नॉर्म आपने बताया, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वुमेन को सपोर्ट कर. थैंक यू डॉक्टर अक्सा, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया. आप कुछ बोलेंगे इस पे? थैंक्स नाइमा, एंड आई एम सो हैप्पी कि स्पेशली टू सी कि जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो छोड़ के नहीं जा रहे हैं मीटिंग, हालांकि हमने 1 घंटे से ज्यादा एग्जिट कर लिया है. सो दैट रियली शोज कि हाउ एंगेजिंग दिस कॉन्वर्जेशन इज. एंड एक चीज मैं शेयर करना चाह रही हूँ कि आज हमारा सेकंड गुलाबी गुफ्तगू का टॉक है, एंड आई वाज प्लानिंग कि मैं थर्ड में क्या किन लोगों को लाऊं पैनलिस्ट में. And I was listening to Mariam's poem, and आज unfortunately आज हमारा ऐसा माहौल है कि एक बहुत ही इंडिया के बेस्ट फोटो जर्नलिस्ट जो हैं उनको हमने खो दिया है, दानिश सिद्दीकी को. लेकिन अगर आप ट्विटर पे हिट रेट देखें तो किस किस्म का है, तो आज की डेट में एक मुस्लिम जर्नलिस्ट होना बहुत ही मुश्किल है. ऑन टॉप ऑफ दैट, इफ यू आर एन इंडियन मुस्लिम जर्नलिस्ट, तो शायद और भी ज्यादा मुश्किल है. सो आई एम प्लानिंग द नेक्स्ट टॉक विद मुस्लिम जर्नलिस्ट, इंडियन मुस्लिम women journalists, and I was while during the talk I messaged 4 Muslim women journalists, one from Hindustan Times, one from Scoop Whoop, one from Interpress Service, and one from CNN News 18, and all of them were so excited to come. And I was wondering who should be anchoring that, and I was like, who can be better than Mariam for that, since she is herself a journalist person. So Mariam, this is to you an offer online to host our next Gulabi Guftagu with these dynamic Indian women journalists. Yeah, over to you Naima. थैंक यू. तो अगला सेशन आपने तैयार कर लिया है. अब क्योंकि वक्त हो चला है इसके एंड का, तो मैं चाहूंगी 2 हमारे पैनलिस्ट ने अपने बहुत ही प्यारे से मैसेज दे दिए हैं. आयशा, आप भी एक मैसेज दे हमारे ऑडियंस को मैसेज वही जो मरियम ने कहा, सॉलिडारिटी औरतों में बहुत ज्यादा जरूरी है. जो काम डॉक्टर अक्सा कर रही है मैं भी कर रही हूँ, तो ऐसे लोगों से कनेक्ट होना और ऐसे लोगों से दूसरों को भी इंस्पायर करना कि औरत भी औरत की दुश्मन तो हो सकती है, लेकिन औरत ही औरत की दुश्मन बिल्कुल नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है. और पेट्रियार्की पर हमने एक सेशन डॉक्टर कमला भसीन के साथ किया था. उनका बहुत ही अच्छा सेशन था. उन्होंने ये बात समझाई कि मर्दों को कितना ज्यादा नुकसान होता है पेट्रियार्की से, और किस तरह औरतें भी पेट्रियार्की का हिस्सा होती हैं. तो दैट इज अ ग्रेट सेशन. और इस पे और बात होनी चाहिए. अगर जब भी कोई जर्नलिस्ट आ रहे हैं अगले पैनल में, तो वो भी अपने चैलेंजेस शेयर करेंगे और वो भी बताएंगे. तो गुलाबी गुफ्तगू इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, एंड आई थिंक जूम पर इतने लोग देख रहे हैं, तो अगर हम इसे लाइव प्लेटफॉर्म्स पे करें तो शायद और ज्यादा लोग इसे देखेंगे. एंड इंशाल्लाह आई विल बी हैप्पी टू बी द सपोर्ट सिस्टम बिहाइंड दिस. आज मैं खुद स्क्रीन पे थी, तो मैं टेक्निकल सपोर्ट जो है वो सैटरडे की वजह से प्रोवाइड नहीं कर पाई, बिकॉज माई स्टाफ इज ऑन लीव. अदरवाइज इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, एंड नाइमा यू आर अ ग्रेट होस्ट. आपने बहुत अच्छे से पूरा प्रोग्राम होस्ट किया. तो बहुत अच्छा लगा. ऑडियंस को भी बहुत शुक्रिया जो लोग जुड़े हैं.